ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹی ایل پی پر پابندی وزیراعظم نے مسودہ منظور کر لیا۔ وفاقی کابینہ سے آج گرین سگنل ملنے کا امکان۔ وزیراعظم نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی۔ کابینہ کے ارکان بھی 24 گھنٹے کے اندر تنظیم کو بین کرنے کی منظوری دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران 100 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا افتتاح کیا۔ آرمی چیف نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مزید تفصیلات نبیلہ حفیظ کی اس رپورٹ میں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے فوجی فاؤنڈیشن پہنچنے پر مینیجنگ ڈائریکٹر وقار احمد ملک نے استقبال کیا۔ پاک فوج کے سربراہ کو فوجی فاؤنڈیشن کے آئندہ منصوبوں اور مختلف شعبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورے کے دوران فاؤنڈیشن، یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ، اسکول آف نرسنگ کا بھی افتتاح کیا اور معیاری خدمات کے لیے ادارے کے عزم اور کارکردگی کو سراہا۔ نبیلہ حفیظ، GNN نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم کی ہدایت پر وزیر خارجہ کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں کورونا وبائی صورتحال، معاشی سفارتکاری اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کورونا وبا نے دنیا کی مضبوط اور طاقتور معیشتوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ان معاشی مضمرات سے نمٹنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے اس تناظر میں اپنی جغرافیائی سیاسی ترجیحات کو جغرافیائی معاشی ترجیحات سے بدل دیا ہے۔ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معاشی سفارتکاری، علاقائی روابط کے فروغ کی پالیسیوں پر گامزن ہیں۔ پولیس اور اداروں پر تشدد میں ملوث مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت کو بزور طاقت کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنے بیان میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جتھوں سے ریاست نہ کبھی پہلے بلیک میل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔ جمہوریت میں ہر کسی کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہر شہری پر ایسے ہی لازم ہے جیسے ریاست سے وفاداری کا اصول۔ جن لوگوں نے یہ اصول پامال کیا وہ قومی مجرم ہیں، ان سے ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے اپنی سمری میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی ہے، جس کے بعد 16 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا کی سمری پر حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ فردوس عاشقوان نے شہباز شریف کی ضمانت میرٹ کے برعکس قرار دے دی۔ کہا کہ پی ڈی ایم سے علیحدگی اور اب ضمانت میم اور شین لیگ خود ہی جواب دیں، اس کے پیچھے آخر ہے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ضمانت میں یہ نہیں لکھا کہ شہباز شریف نے چوری ڈکیتی نہیں کی۔ ان کی ضمانت اس لیے ہوئی کیونکہ کیس سننے والے جج صاحبان کو 1 ماہ پہلے اسلام آباد پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ مہنگائی لیگ کے خلاف ہے۔ عثمان بزدار مہنگائی کے خلاف ٹف میچ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ رمضان بازاروں کو سیر و تفریح کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس معاملہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیداران اکبر ایس بابر کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا اسکروٹنی کمیٹی کو مئی کے آخر تک کام مکمل کرنے کا حکم۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 اپریل کو اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا کہ اسکروٹنی کمیٹی ریگولر ورکنگ ڈیز میں صبح 10 بجے سے سحر 3 بجے تک کام کرے، جبکہ فریقین ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ اور ایک مالی ایکسپرٹ کمیٹی کو فراہم کریں۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو مئی کے آخر تک کام مکمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ مہلک وبا، مزید 118 زندگی نکل گئی۔ کورونا وائرس سے جہاں باک افراد کی تعداد 15,872 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 5,395 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کے مطابق کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,39,818 تک جا پہنچی۔ 4,256 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، تاہم 6,46,652 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 1,06,88,894 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق مہلک وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ احتیاط ہے۔
पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पंजाब भर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। पीडीएम के मुताबिक आज से इतवार के रोज़ तक पंजाब में शदीद बारिशों, जबकि जनूबी पंजाब के अजला में यालाबारी और शदीद बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान, पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तीसरा टी20 मैच शाहीनों की ऊंची उड़ान। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने 204 रन का पहाड़ जैसा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टी20 मैचेस में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी। टी20 मैच कौमी टीम ने पहली बार 200 से जायद रन का हदफ हासिल किया है। पाकिस्तान ने प्रोटीज के खिलाफ टॉस जीतकर हरीफ टीम को बैटिंग की दावत दी और खुद बॉलिंग का फैसला किया। 204 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने किया। दोनों ने आगाज से ही शानदार बैटिंग करते हुए विकेट के चारों अतराफ शॉट्स खेले। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने 49 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। इस तरह वो पाकिस्तान की तरफ से टी20 में सेंचुरी बनाने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए। दूसरी तरफ बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 197 रन की पार्टनरशिप बनी। बाबर आजम 122 रन बनाकर आउट हुए। विलियम ने उनके विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 204 रन का पहाड़ जैसा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हंसते खेलते हुए अबूर कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में विराट कोहली से पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम ने दौरान सीरीज मजमूई तौर पर 28 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। बाबर आजम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज का एहतमाम दुनियाई क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन की हैसियत से किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोजा सीरीज के 3 मैचेस में 228 रन बनाने वाले बाबर आजम ने सीरीज के दौरान मजमूई तौर पर 28 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए और आईसीसी वनडे इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गए। सीरीज के आगाज से कबल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दर्जाबंदी में भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम के दरमियान 20 रेटिंग पॉइंट्स का फासला था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमरीकी अफवाज को मुल्क वापस बुलाया जाए। अफगानिस्तान में अपना मकसद हासिल कर लिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला इस साल 11 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीका के साथ साथ बरतानिया ने भी अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला का फैसला कर लिया है। अफगान सदर का फ़ौजें वापस बुलाने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा कि अफगान फोर्सेस अमरीकी मदद के बगैर भी अपने मुल्क और लोगों की हिफाजत कर सकती हैं। सदारती महल से जारी बयान के मुताबिक अशरफ गनी ने अपने अमरीकी हम मनसब से फ़ौन पर बात की। उन्होंने 11 सितंबर तक तमाम अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकालने के फैसले को सराहा। अफगान सदर का कहना था कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। करोड़ लाल ईसन फतेहपुर ज़िले पुलिस की तरफ से अमन अमान के क़याम और शो ऑफ पावर के लिए ज़िला भर में फ्लैग मार्च किया गया। करोड़ लाल ईसन फतेहपुर ज़िले पुलिस की तरफ से अमन अमान के क़याम और शो ऑफ पावर के लिए ज़िला भर में फ्लैग मार्च किया गया। तर्जुमान लिया पुलिस का कहना था कि फ्लैग मार्च की क़यादत DPO लिया सैयद नदीम अब्बास ने की। DSPs भी उनके हमरा मौजूद रहे। फ्लैग मार्च लिया से शुरू होकर चौक आज़म, फतेहपुर, करोड़ लाल ईसन और दीगर शहरों से होता हुआ लिया में ही एहतमाम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में ज़िला भर से पंजाब पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद ज़िला भर में अमन अमान को बहाल रखना था। यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी। कल रात से जारी बारिशों से वफाकी दारुल-हुकूमत का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। अब्र रहमत बरसने से जाती सर्दियां दोबारा लौट आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बारिशों के बाद जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जाती सर्दियाँ दोबारा लौट आई है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और गर्मियों से जो है शहरियों को निजात मिल गई है। मैं आपको बताया चलूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 73% रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने पेशन गोई भी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इस्लामाबाद में जो है तेज़ हवाओं
کے ساتھ جو ہے بارش کا امکان ہے. اور ملک کے جو دیگر شہر ہے اگر اس کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے خیبر پختونخوا کے علاقے کالام میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی. خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی. ساتھ ساتھ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں جو ہے بارشیں ہوئی. محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں خطے پوٹوہار اور ساتھ ساتھ جو اضلاع کشمیر کے علاقے پر جو ہے بارشیں ہو سکتی ہے. اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کی جائے تو کل ہمیں دیکھا کہ کل دن کو جو ہے پہلا ہو سکتا اور گرمی بہت زیادہ تھی, لیکن رات کے اوقات کار میں جو ہے اب رحمت برسنے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. جاتی سردیاں جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے. اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے جنوری فروری کا ہو, بہت سردی جو ہے وہ ہو گئی ہے. اگر موسم اس طرح خوشگوار رہا, چونکہ روزہ بھی ہے, تو شام کے اوقات کار میں جو اسلام آباد کے باسی مختلف ہوٹلوں کا رخ کریں گے, مختلف ڈھابوں کا رخ کریں گے اور یقیناً افطاری کے بعد جو ہے اس موسم کا مزہ دوبارہ کریں گے. جی, میونسپل کمیٹی کے عملے کی ناقص کارکردگی کے باعث سانگلہ ہل شہر اور اس کے گرد و نواح میں گندگی کے انبار لگ گئے. صفائی اور سیوریج کی ناقص صورتحال نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا. رضوان سرویہ کی رپورٹ سے ملاحظہ کیجیے. انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث سانگلہ ہل شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا. میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے عملہ کی لاپرواہی اور غفلت نے حکومت کی کلین اینڈ گرین مہم کی دھجیاں اڑا دی. سڑکوں, بازاروں اور گلیوں میں جگہ جگہ لگے کوڑے کے ڈھیر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. کوڑا کرکٹ کے لگے انبار سے اٹھنے والے تفن کے باعث شہریوں میں بیماریاں پھیلنے لگی. گلیوں اور بازاروں کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. پانی دی گندگی جڑی ہے ساڈے اس محلے دے وچ عذاب بنی. ایتھے کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکل سکتا, نہ کوئی مریض بیمار ہوئے تے جتیاں گندگی دے وچوں لنگنا پیندا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار اسسٹنٹ کمشنر کو شکایت کرنے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. انتظامیہ سب اچھا کا راگ الاپ رہی ہے. AC صاحبہ, اسسٹنٹ کمشنر صاحب سارے نو بارہا اس چیز تو اطلاع دے چکے ہیں, اپلیکیشناں دے چکے ہیں, لیکن کوئی بھی اس چیز دے اتنے آ کے تے عمل درآمد کر کے اینو حل کرنے ساڈے مسئلے نو کوئی بھی تیار نہیں. اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے ناقص کارکردگی کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضوان سرویہ, JNN نیوز, سانگلہ ہل. سرگودا کے پوش ترین علاقہ شمع چوک میں گیس ری فلنگ کی دکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے یکے بعد دیگرے دھماکے ہونے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی. حکومت پنجاب نے گیس سلنڈر کی ری فلنگ پر پابندی عائد کر رکھی ہے, جبکہ شمع چوک کے قریب دکان میں سلنڈر سے گیس ری فلنگ کی جا رہی تھی کہ اچانک دکان میں آگ بھڑک اٹھنے سے یکے بعد دیگرے دھماکہ ہوئے, جس سے قرب و جوار میں بھگدڑ مچ گئی. واقعے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی, آگ بجھانے میں مصروف ہے. آریوالا میں ڈپٹی کمشنر پاک پتن کا گندم خرید مراکز اور رمضان بازار کا دورہ, کسانوں اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. پنجاب حکومت کی ہدایت پر بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. DC پاک پتن نے تمام سٹالز کا معائنہ کیا اور کوالٹی کو چیک کیا. DC پاک پتن رانا شکیل اسلم کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق رمضان بازار قائم کر دیے گئے ہیں. رمضان بازار میں چینی 65 روپے فی کلو جبکہ آٹا 375 روپے کے حساب سے دستیاب ہے. کوئٹہ میزان چوک پر رمضان المبارک کے حوالے سے سستا رمضان بازار لگا دیا گیا ہے, مگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سستے بازاروں میں ابھی تک اشیاء ضروریہ نہ پہنچ سکی. دوسری جانب شہری پریشان کہ آخر جائیں تو جائیں کہاں. وہاں تبدیلی سرکار تیرے دور حکومت میں اشیاء بھی نایاب ہو گئی. شہریوں کا کیا کہنا تھا, جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے نثار بلوچ سے. جی نثار بلوچ, آگاہ کیجیے گا. کوئی ایسا خاص کاروبار نہیں ہے, لوگ بالکل انتہائی مجبور ہو چکے ہیں. مجبوراً بے روزگاری کے حوالے سے وہ خودکشی بھی کر رہے ہیں اور ان کے حالات تنگ ہے. اس حوالے سے جاننا چاہیں گے, جی ہمارے ساتھ ایک مزدور ساتھ ہے, کیا بتائے گا. جی سر جی, ہم لوگ تو 1-2 مہینے سے بیکار ہے. اب جو ہے نا رمضان کا مہینہ بھی آ گیا اور گھر میں جو ہے نا شام کو جو ہے نا روزہ مات کے لیے کھجور تک نہیں ہے. جب کھجور مل جائے تو بھائی پانی نہیں ہے, پانی مل جائے تو بھائی آٹا اور یہ گھی وغیرہ. آلو جو ہے نا ہم لوگوں کا آلو جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. غریب عوام کیا کرے. جی میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو یہاں پہ سستا بازار کا انہوں نے کہا تھا, ابھی ان کی کوریج بھی ان میڈیا والوں نے کر لی ہے. وہاں پہ چوہے بھی نہیں ہیں.
सामान तो अपनी जगह पे, वहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। ये जो लोग कह रहे सस्ता बाजार तो जो हमें क्या आलू नहीं चाहिए, टमाटर नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए, वो हमें घर के साथ भी 10, 15, 20 रुपए किलो मिलते हैं। उसके लिए सस्ता बाजार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सबसे पहले डीसी और एडीसी साकिब साहब का हम लोग बहुत मशकूर है कि उन्होंने जो दस्तरखान के लिए हमें जगह दी। कोहलू में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स की कार्रवाई भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार मेंगल की लेवीज लाइन कोहलू में मीडिया ब्रीफिंग कहा कि लेवीज QRF ने हसास इदारों की इत्तला पर तखरीबकारों के ठिकाने पर कार्रवाई की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तखरीबकार असलहा गोला बारूद को ज़िला में बड़ी तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बरामद असलहा और गोला बारूद में 82 मार्टर गोले, 52 अदद RPG, 7 रौंद, 1 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और दीगर सामान शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि लेवीज QRF ने बरवक्त कार्रवाई करके तखरीबकारों के मकरू अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तानी कौम ने भी क्या किस्मत पाई है। कभी महंगाई का तूफान तो कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग तो कभी गैस की लोड शेडिंग। सार्फिन परेशान, सहरी हो या इफ्तारी, पहले रोज़े के दिन ही गैस लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। लाहौर के कई इलाकों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त गैस लोड शेडिंग की वजह से घरेलू ख़वातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं, जबकि गैस बिजली के निर्ख पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं। मुल्क भर की तरह चूनिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। गंदम के मौजूदा रेट पर ज़िम्मेदार गिला कर रहे हैं। 1800 रुपये की बजाय 1500 रुपये रेट होना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी गंदम खरीद सके। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ महर वक़ार से। जी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूनिया में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह चूनिया में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी वाले से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी, कणक का रेट बहुत ज़्यादा है जी। चूनिया के अंदर कणक की कटाई शुरू है, 1850 रेट है। ये रेट बारे च नहीं, माड़े बंदे दे रेट बारे च नहीं आंदा पिया। जिमीदार भी खुशहाल नहीं हैगा। 4.5 मन कटाई है कणक की, ਇਹਦੇ 'ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ रेट 1400-1500 ਕੀਤਾ जाए, हर बंदा खरीदे, हर बंदा खुशहाल होवे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस ज़िम्मेदार के तासरात जाने, इनका कहना है कि ये जो हुकूमत की तरफ से रेट किया गया है इसको कम किया जाए ताकि गरीब आदमी भी खरीद सके। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग मशीनी हालात से गंदम की कटाई कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो हाथ से गंदम की कटाई कर रहे हैं। जी, असिस्टेंट कमिश्नर कुंदरी ने रमज़ान शरीफ के इंतज़ामात और रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इजलास मुनक़िद किया। असिस्टेंट कमिश्नर कुंदरी ने कहा कि रमज़ान शरीफ के तक़द्दुस का एहतराम किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि एक मुसलमान की हैसियत से हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम रमज़ान शरीफ के तक़द्दुस का एहतराम करें। रमज़ान शरीफ का महीना हमें दूसरों का एहसास और एहतराम करने का दर्स देता है, इसलिए हमको इस पर अमल करना चाहिए। पंजाब भर की तरह फ़िरोज़वाला और शाहदरा में भी पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार तो लगा दिए गए, मगर इंतज़ामिया शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इस वक्त बेगम को रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं अपने नुमाइंदा JNN न्यूज़ अतीक मुगल। उनसे पूछते हैं। जी अतीक मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही पंजाब हुकूमत जो है पंजाब भर में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने के लिए अहकामात तो जारी कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर सहूलियात ना दे सके। अगर बात मैं करूँ यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से, तो सबसे पहले यहाँ पर कोरोना SOPs के हवाले से बात करूँगा। यहाँ पर ना तो कोई दाराकार लगा के कोरोना SOPs के हवाले से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है। और दूसरी जानब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं दालें, आटा, चीनी और दूसरी जो अशियाए खुर्दो नोश हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की, यहाँ पर जो है सिर्फ स्टॉल लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मौजूद ना हैं। चीनी के हवाले से अगर बात करूँ तो हुकूमत पंजाब की जानब से 65 रुपये रेट तो मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन चीनी नायाब हो गई। शहरियों की लंबी कतारें लग गई चीनी लेने के लिए। शहरी जो है खज्जल खबार होकर रह गए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इस हवाले से। बताइएगा, कितनी देर से आप लाइन में लगे हुए हैं और चीनी अभी तक आपको मिली है या नहीं मिली? सुबह के लाइन से लगे हुए हैं, चीनी कोई नहीं मिली है, वारी नहीं आती शाम तक।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ चीनी ਤੇ सस्ता रेट है, बाकी तो कोई सस्ता रेट नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि शहरियों में काफ़ी गमो गुस्सा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर शहरियों का कहना है कि यहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं, टाइम गुजर जाता है लेकिन चीनी नहीं मिलती। अगर दूसरी चीज़ों की बात करें तो जो बाज़ार में रेट चल रहे हैं वही यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में भी रेट चल रहे हैं, रेट्स का कोई खासा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। जी सिखों के 3 रोज़ा रंगों के त्यौहार मेला बैसाखी की तकरीबात हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में जारी। हज़ारों की तादाद में सिख ज़ायरीन अपनी रसूमात सिख मजहब के रस्मी त्यौहार मेला बैसाखी की तकरीबात हर तरह इस साल भी हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में जारी, जिसमें हमसाया मुल्क इंडिया से 838 सिख ज़ाहिरीन अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए रात गए बरास्ता मोटरवे गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँचे, जहाँ रस्म पाक अदा की, ग्रंथ साहब के पाठ पढ़े और पंजा साहब के चश्मे में आशनान किया। महंगाई के सताए हुए आवाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान, यूटिलिटी स्टोरों पर अशय खुरनोश पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी आवाम को रिलीफ देने के लिए बोनीर में 3 सस्ता बाज़ारों का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बोनीर से मुजीबुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मुनीर नसरुल्लाह यूसुफजई, टीए मोडगर अमीर खान, मिनिस्टर महकमा CNW रियाज खान के फोकल पर्सन एजाज खान ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर अदालत चौक डगर में सस्ता रमज़ान बाजार का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुनीर टीए मोडगर अमीर खान ने कहा कि बुनियर ज़िले में 3 मुकामात अदालत चौक डगर, सवाड़ी बाजार और दीवाना बाबा में सस्ते बाज़ारों में आवाम को सरकारी नामे के मुताबिक सस्ता आटा, चीनी, घी, सब्ज़ी और फ्रूट मिलेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर TMS के एहलकार और मुतल्लिका सब डिवीज़न के ACs सस्ते बाज़ारों के दौरे करेंगे और अवामी शिकायत पर पूरी एक्शन लिया जाएगा। सस्ते बाज़ारों में साबुन, सैनिटाइज़र और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इफ्तिताह के बाद आवाम ने सरकारी रेट पर चीनी, घी, आटा और ज़रूरत की दूसरी अशिया सस्ते बाज़ारों से लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। आवाम ने सूबाई हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले को अवामी मुफाद में करार दिया। रशीद, JNN, बुनेर। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है, जिसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आवाम के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार सजा दिया गया है, जिसमें रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश बाज़ार से कम निरखों पर फरोख्त की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद इस्माइल ने PTI कारकुनों के साथ रमज़ान बाज़ार का दौरा किया और अशिया खुरनोश के मयार और मिकदार का जायज़ा लिया। यहाँ पर आपको बताएं कि DSP सदर सर्कल सरदार हाकिम अली खान बलोच का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम सेंटर और सस्ता रमज़ान बाज़ार का अचानक दौरा, अशिया खुरनोश की क़ीमतों, सिक्योरिटी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मुलाज़मीन को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। DSP सरदार हाकिम अली खान बलोच ने DPO सैयद करार हुसैन की हिदायत पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के सेंटर और सस्ता रमज़ान बाज़ार का दौरा किया। DSP सरदार हाकिम अली खान बलोच ने मुलाज़मीन को कोरोना SOPs के हवाले से समाजी फासला और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की और रेट लिस्ट वाज़े तौर पर अवेज़ा किए जाएँ। JNN न्यूज़ से फ़िल वक्त नहीं, मज़ीद बाखबर रहने के लिए रहिए हमारे साथ।